اور خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا کرم ہے۔ ماشاء اللہ۔ تو دیکھیں سیکوینسی سے بات ہوگی، 2 منٹ آپ بولیں گے، 2 منٹ میں بولوں گا، آپ کے بیچ میں نہیں بولوں گا، میرے بیچ میں آپ نہ بولیے گا۔ جو ایک دوسرے کے بیچ میں بولا، اگر وہ غلطی بھی کرتا ہے نا تو اپنی ٹرن میں اس کو وضاحت کی جائے گی، ٹھیک؟ آپ کوئی ٹھیک۔ غلطی کریں گے، میں اپنی ٹرن میں وضاحت کروں گا، اس کے درمیان آپ بولیے گا نہیں، کیونکہ اس سے خلط مبحث ہو جاتا ہے، بات سمجھ نہیں آتی۔ ریکارڈنگ آپ ٹھیک چالو کر لیں اپنی، اگر کر رہے ہیں تو جی ٹھیک ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ کے تعلق سے بات ہو رہی تھی، تو میں آپ دلائل دینے والے تھے بعد از وفات کی، تو میں ٹائمر سنیے شروع کر دیتا سنیے ہوں۔ سنیے 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 ابھی تو بات شروع بھی نہیں، آپ پہلے ہی خلط مبحث کرنے لگے۔ نہیں نہیں، غلط مبس نہیں کر رہا ہوں، جیسے آپ شرائط طے کر رہے ہیں تو کچھ میں بھی اپنی شرائط بتا دوں آپ کو۔ جی جی جی، ٹھیک ہے، بتا دیں شرح۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ٹائم اگر 2 منٹ کا پورا ہو گیا اور بات پوری نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، جی تو آپ بیچ میں ٹوکیں گے نہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر درمیان میں آپ کسی غلط عبارت کو پیش کر رہے ہیں تو میں ٹوکوں گا آپ کو، ٹھیک ہے۔ اور اچھا دوسری بات یہ کہ اگر کوئی آپ نے عبارت پیش کی حدیث شریف کی یا قرآن شریف کی کوئی آیت پیش کی تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ مجھے بھیج دینا۔ اور دوسری بات یہ کہ کل جو بات ہوئی اس کو چھوڑیں، آج سے اپنی بات ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو آپ اپنا مجھے بتائیں کہ آپ وسیلے کے تعلق سے کیا عقیدہ رکھتے ہیں، کیا منہج ہے آپ کا، کیا ماخذ ہے، کیا عقیدہ ہے وسیلے کے تعلق سے آپ کا، سب سے ٹھیک پہلی ہے، بات آزاد بتائیں۔ بھائی، میں آپ کی 2 شرائط کو قبول کرتا ہوں اور ایک شرائط کو ترک کرتا ہوں۔ وجہ میں بتا دوں، آپ نے جو پہلے کہا ہے کہ جب میری دلیل پوری نہیں ہوگی تو میں ٹھیک ہے، اس وقت آپ کو میں وقت دے دوں گا۔ دلائل جب آپ دیں گے تو آپ وقت لے سکتے ہیں، لیکن گفتگو جب آپ کریں گے بغیر دلیل کے تو 2 منٹ سے زیادہ نہیں، ٹھیک؟ یہ میں قبول کرتا ٹھیک۔ ہوں۔ دوسری جو آپ کی دلیل کہ اگر جہاں آپ غلط عبارت پڑھیں گے تو وہاں میں آپ کو ٹوکوں گا، وہ اس لیے صحیح نہیں ہے کیونکہ وہ ہو سکتا ہے آپ کے ذوم میں غلط ہو، آپ کے ذوم میں غلط ہو۔ میں جو پیش کرنے لگا ہوں اس کو مکمل کرنے دیجیے گا، اپنی ٹرن میں میری غلطیاں بتائیں گے اور بہتر سمجھ آئے گا عوام کو، دیکھو یہاں پر اس نے غلطی کی تھی۔ ایسا ہوگا وہ میں آپ سے جب پوچھوں گا اور کہوں گا آپ سے کہ یہاں آپ نے غلطی کی، غلط عبادت پیش کر رہے ہیں آپ، ہاں تو وہاں مجھے آپ حوالہ دیں گے، ٹھیک ہے، حوالہ دیں گے، تب میں دیکھوں گا کہ ہاں ٹھیک ہاں، ہے، پھر اپنی آگے ٹرن بات میں ہی بڑھے تو گی۔ مانگیں گے نا مجھ سے حوالہ، آپ لقمہ لے سکتے ہیں مجھ سے، لیکن میری ٹرن میں آپ غلطی نہیں بتا سکتے جب تک مکمل گفتگو نہ کر لوں میں، چلیے ٹھیک ہے، آپ کی یہ بات مان لیتے ہیں۔ ٹھیک؟ اچھا، ٹھیک۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کل کی بات کو چھوڑوں، چلو چھوڑ دیا۔ آج میں اب ساری آپ آپ کی اپنا، بات مان رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ بس تحمل سے بات کریے گا، یہ میری گزارش ہے، الحمدللہ تحمل سے ہی بات ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو کیونکہ آپ جن وسیلہ پر میں آپ کو 2 منٹ دیتا ہوں، آپ اپنا مکمل دعویٰ پیش کر دیں۔ سنیے، وسیلے کے تعلق سے یا کسی بھی ٹاپک سے جب بات ہوتی ہے تو دونوں مدعی اپنا اپنا دعویٰ پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنا اپنا عقیدہ پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میرا الحمدللہ وسیلے پہ یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور نیک بزرگوں سے اور اعمالوں کا وسیلہ لینا جائز ہے، اور یہ صحابہ سے ثابت ہے، سنت عمل ہے۔ اب آپ بتائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والسلام والصلاة علی سید المرسلین، اما بعد۔ پہلے میں آپ کو وضاحت کر دوں، امان بھائی، جب میں بولا کروں تو آپ میوٹ کر لیا کریں تاکہ ریکارڈنگ میں کوئی گڑبڑی نہ ہو۔ میں آپ کو وضاحت کر دوں، آپ نے کہا دونوں مدعی اپنا دعویٰ پیش کرتے ہیں، جناب 2 مدعی نہیں ہوتے، ایک مدعی ہوتا ہے اور ایک مدعا علیہ ہوتا ہے، 2 مدعی کبھی بھی نہیں بنتے۔ آپ نے کہا کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یا مطلق وسیلہ صحابہ کی سنت ہے یہ، اور میں اس کو سنت مانتا ہوں۔ کل میں آپ سے یہ پوچھ رہا، چلو ٹھیک ہے کل کی بات چھوڑو، کر تو آپ نے بتایا نہیں، آج آپ نے اس عمل کو سنت کہا ہے کہ صحابہ کا عمل رکھا ہے۔ میں آپ سے اختلاف پر بات نہیں کروں گا، اتحاد پر بات نہیں کروں گا، اختلاف پر بات کروں گا۔ ہمارا اور آپ کا یہ مشترکہ عمل اور کہنا ہے کہ جناب رسول اللہ کی زندگی میں وسیلہ لینا، یہ ہم بھی قائل ہیں، آپ بھی قائل ہیں، اس پر نہ آپ دلیل دیں گے نہ میں آپ سے مطالبہ کروں گا۔ جہاں ہمارا اختلاف ہے بعد از وفات پر، اس پر انشاءاللہ آپ دلائل پیش کریں گے، انشاءاللہ آپ کی دلائل کو اگر صحیح ہوگی تو ہم قبول کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو لہٰذا ہمارا دعویٰ یہ ہے، آپ نے دعویٰ پیش کیا ہے، پہلے بات تو دعوے پہ تنقیح ہوتی ہے، جواب دعویٰ جب آتا ہے جب تنقیحات کو وہ مکمل کر لیتے ہیں۔ تو آپ نے جو دعویٰ کیا ہے کہ جناب رسول اللہ کا وسیلہ لینا صحابہ سے ثابت ہے وفات کے بعد، اور میں اس کو سنت مانتا ہوں،
تو سب سے پہلے آپ سے میرا دعویٰ ہے کہ اگر آپ وسیلہ کو سنت مانتے ہیں تو اس کی سنت ہونے کی آپ مجھے دلیل پیش کریں کیا ہے؟ جی میں آپ کا ٹائم شروع کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ ایک دعویٰ کرنے والا ہوتا ہے وہ دوسرا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو میرا کہنا آپ سے یہ ہے کہ آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ وسیلہ بعد از وفات لینا نہیں چاہیے، آپ کا دعویٰ یہ ہے، اور میرا یہ ہے کہ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم دونوں دعویٰ کرنے والے ہیں بھائی ہم۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے یہ پوچھا ہے کہ وسیلے کے تعلق سے آپ کا منعد ماخذ عقیدہ کیا ہے، آپ وہ پہلے مجھے بتائیں کہ جو وسیلہ لے گا بعد از وفات سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یا اور بزرگوں کا، اس پہ کیا حکم لگے گا، کیا حکم لگاتے ہیں آپ، یہ بتائیں، یہ بولیے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ دیکھیں، آپ نے یہ بات کہی ہے کہ میں جائز کا قائل ہوں اور آپ ناجائز کے قائل ہیں۔ حضرت جی آپ کی میں اصلاح کر دوں، انکار کرنے والا دعوے دار نہیں ہوتا۔ حدیث یہ ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، کہ مدعی پہ ذمہ ہوتی ہے کہ وہ دلیل پیش کرتا ہے، انکار کرنے والا دلیل نہیں بلکہ حلف اٹھاتا ہے۔ تو میں انکار کر رہا ہوں کہ بعد از وفات وسیلے کو میں نہیں مانتا، یہ میرا انکار ہے اور اس پر میں دلیل نہیں دوں گا حدیث کے مطابق۔ آپ ذمہ دار ہیں جی، بعد وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لیا گیا ہے، یہاں آپ مدعی ہیں، میں مدعی نہیں ہوں، یہ آپ سمجھیں، ایک مدعی ہوتا ہے ایک مدعا علیہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا میں انکار کرتا ہوں کہ بعد از وفات وسیلہ لینا یہ ثابت نہیں ہے۔ آپ کو ثابت کرنا، کیونکہ آپ نے جائز کہا ہے، اس وقت آپ ذمہ دار ہیں، ناجائز کہنے والا ذمہ دار نہیں ہوتا۔ جائز کہنا پہ سب سے پہلے دلیل جائز کی ہوتی ہے، کیونکہ کسی کا وجود ہی نہیں ہے تو اس پر حکم کیسے لگائیں گے؟ آپ پہلے وجود ثابت کر دے بعد از وفات، پھر ہم حکم لگا دیں گے۔ جی دیکھیے، میں مختصر الفاظوں میں بات کرنا بہتر سمجھتا ہوں، اس لیے میں نے آپ سے پوچھا کہ اگر کوئی بعد از وفات وسیلہ لیتا ہے تو آپ اس پہ کیا حکم لگائیں گے، میں پھر آپ سے وہی پوچھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور دعوے دار آپ بھی ہیں، کیونکہ اگر کوئی وسیلہ لیتا ہے تو اس پہ حکم کیا لگے گا، یہ آپ کا دعویٰ ہے کہ وسیلہ نہیں لینا چاہیے، ٹھیک ہے، تو دعوے دار آپ بھی ہیں، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بعد از وفات، کیونکہ جب وہ ظاہر تھے یا اور نیک بزرگ جب ظاہر ہوں تو ان کا وسیلہ لینا جائز ہے، یہ آپ کا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے، آپ اسے مانتے ہیں، اور بعد از وفات یعنی دنیا سے جانے کے بعد وسیلہ نہیں لے سکتے۔ تو اب آپ جب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہاں وسیلہ نہیں لے سکتے، تو میں وہی آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ وسیلہ بعد از وفات نہیں لے سکتے، اس کے اوپر آپ کیا حکم لگائیں گے، آپ کا منہج و ماخذ اس سے کیا ہے، کہ کیا عقیدہ ہے، اس سے کیا لگے گا، بتائیں۔ الحمدللہ۔ سب سے پہلے آپ نے یہ بات کہی تھی کہ ہم وسیلہ کو جائز مانتے ہیں، میں نے یہی کہا تھا کہ ہم ترتیب سے بات کریں گے۔ اب جائز ہونے کی دلیل سے آپ کترا رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں میں اپنا موقف پیش کروں۔ میں واضح کہہ دیا کہ ہم وسیلہ کو ناجائز مانتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص کر کے وسیلے کو ان کی وفات کے بعد ہم بدعت ضلالہ مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، حکم آ گیا، آپ دلیل پیش کر دیں۔ دراصل ایسا تھا کہ کل آزاد بھائی سے میری بات ہو رہی تھی، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو رضا بھائی ہیں وہ وسیلے کو بعد از وفات وسیلہ لینے کو شرک مانتے ہیں، شرک بدعت ضلالہ انہوں نے یوں ہی کہہ دیا تھا۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ بعد از وفات وسیلہ لینا آپ کے نزدیک شرک ہے یا بدعت ضلالہ ہے، کیا ہے، یہ بتائیں۔ الحمدللہ، جب بات شروع آپ نے کی تھی نا تو یہ کہا تھا کہ رضا بھائی کل کی بات کو چھوڑو، چھوڑ دیا جی، کیوں لا رہے ہیں بیچ میں آپ؟ مطلب آپ اپنی بات کی مخالفت 2 منٹ میں کر جاتے ہیں۔ ابھی جب میں پیش کر رہا تھا تو آپ نے کہا کہ نہیں رضا بھائی کل کی بات کو چھوڑو، ہم نئے سرے سے بات کرتے ہیں۔ تو اب نئے سرے سے جب بات ہو رہی ہے تو میں دعویٰ کل بھی یہی پیش کیا تھا، آج بھی یہی پیش کر رہا ہوں۔ دوسرا کیا کہتا ہے اس سے مجھے کیا مطلب ہے؟ آپ میرے سے وضاحت لے رہے ہیں تو میں ہی وضاحت کروں گا نا۔ تو لہٰذا کل کی بات کو چھوڑیں حضرت جی، اور میں اس کو بدعت ضلالہ مانتا ہوں، تو اس کی آپ کو دلیل دینی ہے۔ اور میرا بدعت ضلالہ کا فتویٰ ایسے ٹوٹے گا کہ اگر کسی صحابی سے بعد از وفات وسیلے کی دلیل مل گئی تو میں رجوع کر لوں گا اور میں کہوں گا کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی تھی۔ جی کہنے کا مطلب یہ ہے میرے پیارے دوست
कि कल की बातों पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि आपका एक अहले हदीस भाई है, वो अहले हदीस भाई ये कहता है कि आपका अकीदा है शिर्क का, कि आप शिर्क कहते हैं, ठीक है, लेकिन आप कह रहे हैं कि बिदात जलाला है। तो आपका जो दूसरा अहले हदीस भाई है वो कहता है कि शिर्क है, और आप कहते हैं कि बिदात जलाला है। तो यहाँ तो फर्क आ गया आप ही की बात में। तो अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि शिर्क है या बिदात जलाला है, ये बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु अला मन ला नबी बादा। जब ये तमाम रिकॉर्डिंग सामाईन सुनेंगे ना, वो ज़रूर आपसे ये कहेंगे कि हज़रत जी आप कितनी जगह से जंप मार चुके हैं। हज़रत मैं इनफिरादियत पे बात कर रहा हूँ, आप मेरा मौक़िफ़ जान रहे थे ना। आप अहले हदीस का मौक़िफ़ मेरे सामने पेश कर रहे हैं कि फ़लाँ अहले हदीस कहता है, फ़लाँ अहले हदीस दलील नहीं है। जो अपना दावा करता है बंदा वही तो बताएगा ना। वो उनसे आप मैच कर लेना, बाद में लड़ लेना उनसे कि भाई ऐसे ऐसे कहा था आपने, रज़ा भाई ने तो इनकार कर दिया। तो भाई आप लड़ लेना उनसे, पहले यहाँ इनफिरादियत पे बात करो। मैं वाज़ेह कह रहा हूँ कि मैं रसूलुल्लाह के वसीलों को बिद्दत ज़लाला मानता हूँ। आप इस बिद्दत ज़लाला को साकित करने के लिए कोई हदीस दें। देखिए, ये तो वही बात हो गई जो मैं नहीं कर रहा, उसका नाम आप ले रहे हैं कि जंप मार रहा हूँ, ठीक है। मैंने आपसे पूछा कि आपका मनहज माखज क्या है, क्या अकीदा है, ठीक है। तो जब आपसे मेरी बात हो रही है, आप अहले हदीस हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अहले वल जमात सुन्नी बरेलवी हूँ, ठीक है। तो मैं जो बात करूंगा अपने अकीदे के ऊपर बात नहीं करूंगा, और आप जो बात करेंगे डायरेक्ट अपने अकीदे के ऊपर बात नहीं करेंगे। भाई अगर कोई हुक्म मैं लगाऊंगा या कोई हुक्म बताऊंगा तो अपने अकाबिरों का के बारे में भी दिखाऊंगा कि भाई हमारे अकाबिर इसके बारे में ये कहते हैं, ठीक है। मैं खाली आपसे हवाओं में अपने अकीदे पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक अपनी जमात का भी, मेरी पूरी जमात का ये अकीदा है, मैं उसी पे आपसे बात कर रहा हूँ। तो अगर आप मुझसे ये कहेंगे कि बिदअत शिर्क है, तो मैं फिर आपसे ये कहूंगा कि शिर्क है बिदअत, ये दिखाओ भाई तुम्हारी किताबों में किसने शिर्क कहा, या खाली आप ही कह रहे हैं। तो खाली अगर आप ही कह रहे हैं तो भाई आप ही की क्यों माने, क्योंकि आप क्या हुज्जत कर, आप कोई दीन में हुज्जत तो नहीं रखते। इसलिए फिर मैं आपसे ये कहूंगा कि अपने अकाबिरों की किताब में दिखाओ कि किसने शिर्क कहा। दूसरी बात, अगर मैं उसको कहूंगा कि सुन्नत से साबित है साहबा की, तो फिर मैं अपने अकाबिरों की किताब में दिखाऊंगा कि हाँ भाई यहाँ देखो सुन्नत से साबित है, ठीक है। क्योंकि मैं दीन में कोई हुज्जत नहीं रखता, मेरी बात नहीं मानी जाएगी। जो हमारे अकाबिर हैं, तुम्हारे अकाबिर हैं, उनकी बात मानी जाएगी, ठीक है। कि हाँ इनकी दलील से ये साबित हो रहा होता है कि अहले हदीसों का ये अकीदा है, और यहाँ से साबित होता है। खाली आपसे मेरी बात नहीं होगी, समझ रहे हैं आप, कि मैं आपकी बात को हुज्जत मान के और फिर आपसे बहस करूं, क्योंकि आप हुज्जत नहीं रखते अहले हदीस जमात में खाली, ठीक है। बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलाम वस्सलात अला रसूलिल्लाह। तो तमाम सामाईन ने सुना, ना तो कोई दलील पेश कर रहे, ना कोई रिवायत पेश कर रहे, ना कोई आसार पेश कर रहे। और मैं आपसे बता दूं, 1 घंटा हो जाएगा, वल्लाह ये एक रिवायत पेश नहीं कर सकते सनद सही के साथ। ये इसी तरीके से मुगालता देते रहेंगे और इंशाअल्लाह हम उसका जवाब देते रहेंगे, लेकिन रिवायत पेश नहीं करेंगे क्योंकि इन्हें पता पेश करते ही मैं गया। अच्छा, इनका ये कहना कि आप जो हैं अपने अकाबिर से मुझको बताएं। अच्छा, जो कल आपके भाई अहले हदीस आप बता रहे हैं वो अकाबिर है मेरे नज़दीक? जब उनका आप हवाला दे रहे हैं वो तो मेरे अकाबिर है ही नहीं, तो आप उनकी तरफ से क्यों मेरे लिए कह रहे थे मिसाल दे करके उन्होंने कहा है? वो तो अकाबिर है ही नहीं, वो तो एक बंदा फर्द है। अच्छा, दूसरी बात आपका ये कहना कि मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। भैया अभी मैंने माखज़ बताया नहीं, मनहज बताया नहीं, तो आपने कैसे तय कर लिया कि मैं आपकी अकाबिर की मानूंगा, आपकी नहीं मानूंगा? मेरे अकाबिर से इतनी मोहब्बत है आपको कुरान हदीस को छोड़कर? देखें, माखज़ मेरा कुरान और हदीस इजमा है, ठीक, और मनहज मेरा अहल सुन्नत वल जमात है। अब कुरान और हदीस इजमा मेरा माखज़ है, तो मैं कुरान और हदीस से इजमा से दलील पेश करूंगा बिदअत ज़लाला की। अब जब बिदअत ज़लाला कुरान और हदीस से साबित हो रहा है, तो मुझे मेरे अकाबिर की तरफ जाने की क्यों ज़रूरत है? मिसाल के तौर पर 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है पूरी उम्मत पर, ये पूरी हदीस और कुरान में मिलता है। अब आप ये कहेंगे कि मैं नमाज को फ़र्ज़ जब मानूंगा जब आपके अकाबिर कह देंगे, तो ये तो इलॉजिकल बात होगी, क्योंकि कुरान और हदीस में पहले से मौजूद है, अकाबिर की ज़रूरत नहीं है। उसी तरीके से आप मुझे बता दें कि आप मेरे अकाबिर की हर बात को तस्लीम करेंगे क्या? जो उन्होंने बात कही है, अगर हर बात को आप तस्लीम करेंगे तो मैं इंशाअल्लाह अपने अकाबिर का भी हवाला दिखा दूंगा। मिसाल के तौर पर हाफिज़ ज़ुबैर अली ज़ई
तकलीद के रद में एक उनकी किताब है, और एक है नूरुल ऐनैन फी इस्बात रफ़े दीन में वो कहते हैं कि हमारे नज़दीक जनाब रसूलुल्लाह का वसीला लेना जो है वो बिदअत ज़लाला है। तो ये मेरे अकाबिर हैं, लेकिन मैं अकाबिर पे नहीं जा रहा, मैं कुरान और हदीस पर आपको पेश कर रहा हूँ। तो ठीक है, आप एक हदीस पेश करें बाद अस वफ़ात की तमाम सामाईन, ताकि मुत्तफ़िक हो जाए। जी हज़रत जी। तो इन्होंने कहा कि अगर नमाज फर्ज है और मैं आपको अपने अकाबिर की किताब में दिखाऊं तभी आप मानेंगे, क्योंकि कुरान और हदीस में तो वो फर्ज है। नहीं, मेरा कहने का मतलब वो नहीं है जिस तरफ आप आवाम को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब और मकसद ये है कि जब आप कोई हुक्म लगाएंगे तो वो अपनी जात से तो लगाएंगे नहीं। जैसे मान लो अगर वसीले के ऊपर आप हुक्म लगा रहे हैं कि बिदअत ज़लाला है, तो फिर आपने कह दिया बिदअत ज़लाला है, तो मेरा भाई क्या आप जिनके फॉलोवर हैं क्या उन्होंने भी ये कहा कि बिदअत ज़लाला है? तभी तो मैं आपको उसके ऊपर कुछ दलील दिखाऊं। अगर आप खाली ये कहेंगे बिदअत ज़लाला है, ठीक है, खाली अगर आप कहेंगे बिदअत ज़लाला है तो पूरी अहले हदीस जमात तो इसको तस्लीम नहीं करेगी ना, कि जैसे कल तुम्हारे एक भाई ने ये कहा कि शिर्क है, अब आप कह रहे हैं बिदअत ज़लाला है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि तुम लोग ऐसे अहले हदीस जो होते हैं वो कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, इसलिए अब आवाम ये सुनेगी कि भाई ये आवाम को भी पता है कि अहले हदीस जो होते हैं कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि जो बात तुम कहोगे तुम्हारे अकाबिरों से साबित करोगे, क्योंकि तुम अपने अकाबिरों के तुम मानने वाले हो, हम नहीं, ठीक है। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने अकाबिरों से साबित करेंगे, तो अपने अकाबिरों से साबित करोगे। अगर खाली तुम बोलोगे तो कल अगर किसी ने उसके ये कहा कि भाई वो फला इंसान तो हमारे लिए कोई हुज्जत नहीं रखता है, ठीक है। इसलिए मैंने ये कहा कि जैसे कि आप कह रहे हैं कोई दलील नहीं दिखाएंगे, तो मैंने ये कहा कि आपका जैसे मैंने बता दिया सपा सपा कि अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत है वसीला लेना, सहाबाओं की सुन्नत है, ठीक है, इसको हम सुन्नत मानते हैं। तो अब इसका आप इनकार कर रहे हैं कि बाद वफात वसीला लेना बिदअत ज़लाला है, तो मैं यही आपसे पूछ रहा हूँ कि उस पे बिदअत ज़लाला का हुक्म लगेगा। तो बिदअत ज़लाला का हुक्म लगाएंगे आप शिर्क का हुक्म लगाएंगे, ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे। कि जिसने वसीला लिया कोई दो भी हो, मिनट हो गए चाहे आपको। कोई भी हो, सुनिए, सुनो 2 तो, मिनट हो गए। कोई भी हो, सुन एक बात पूरी हो जाने दे। नहीं, दलील नहीं दे रहे आप। 2 मिनट हो गए, मैंने कहा था दलील देंगे चलिए तो आपको बोलिए 4 मिनट दिए जाए। बोलिए 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 बोलिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु वस्सलातु अला सय्यदिल मुरसलीन, अम्मा बाद। सबसे पहली बात मैंने कहा था कि 1 घंटा हो जाएगा लेकिन ये साहब दलील पेश नहीं करेंगे। ये जो ना एक होता है ना, जैसे मैं आपको मिसाल दूँ, एक कार चल रही है, कार के पीछे एक कुत्ता भौंकता है। जैसे ही भौंकता है वो भौंकता रहेगा, भागता रहेगा पीछे। जैसे ही किवाड़ खुलेगा ना, गेट खुलेगा ना, तो एकदम कुत्ता पीछे भाग जाएगा। तो ये वही मुगालता दे रहे हैं कि भाई साहबा की दलील है, साहबा की दलील है, ताकि आवाम को ऐसा लगे भाई वाकई में ही दलील है कोई इन पर, अमन भाई पर। लेकिन जब मैं इनसे मुतालबा करूंगा, जब मैं गेट खोलूंगा ना गाड़ी का, तो पीछे भागेंगे ये। हजरत जी ये मुगालता ना दें। सबसे पहले आपको चाहिए था कि आप साहबा के जो सुन्नत आपने दावा किया है उसकी दलील दें। अब आपका ये कहना कि भाई आप कौन होते हैं हुज्जत दीन में, बिल्कुल भाई मैं जीरो हूँ। मैं नहीं कहता कि मैं हुज्जत हूँ, लेकिन मैंने ये कहा है कि मेरा जो माखज है वो कुरान और हदीस है। आप ये कह दें कि मेरे नज़दीक कुरान और हदीस हुज्जत नहीं है, जब तक कि मेरे अकाबिर जब तक कि मेरे अकाबिर कुरान से नहीं बताएंगे, हदीस से नहीं बताएंगे, तब तक मैं नहीं मानूंगा। आपका दूसरा सवाल, आपका ये कहना कि आप इसको शिर्क मानते हैं, बिदअत ज़लाला मानते हैं। भाई इंग्लिश में नहीं बोल रहा था मैं, फारसी नहीं बोल रहा, मैं अरबी नहीं बोल रहा, उर्दू में बोला हूँ कि भाई हम इसको बिदअत ज़लाला मानते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद वसीले पर, जिस पर इंशाअल्लाह कुरान से और मैं हदीस से दलील पेश करूंगा। अब कुरान और हदीस को छोड़कर आप ऐसे कह रहे हैं कि अकाबिर से मुझको दिखाएं, तो हजरत पहला आप ये कह दें कि रज़ा भाई मैं कुरान और हदीस को नहीं मानता, लिहाजा जब तक कि आपके अकाबिर इसकी वजाहत नहीं करेंगे, जब तक कि मैं आपकी इस दलील को कबूल नहीं करूंगा। दूसरी बात यह है कि मैंने एक तायद के तौर पर हाफिज जुबैर इल्जई हमारे अकाबिर में आते हैं, उनकी किताब है नूरुल ऐनैन फी इस्बात रफ़े दीन में उन्होंने नबी के वसीले को बिदअत ज़लाला कहा है। ये तायदन में पेश किया हूँ, आप खामखा उसको गोल मोल कर रहे हैं। लिहाजा एक दलील हजरत पेश कर दें, मैं इत्तेफाक करता हूँ इंशाअल्लाह, और ये भी मुंतजिर रहूंगा कि अगली टर्म में ज़रूर ब ज़रूर आप एक सहाबी से रिवायत पेश करेंगे। जी तो मैंने जैसे कि कहा था कि मुख्तसर मुख्तसर अल्फाजों में बात करना बेहतर होता है। जैसे मैंने पूछा था वैसे ही आप साफ साफ अगर बता देते
کہ बिदअत ज़लाला है या शिरक है आपके नज़दीक? आपने ये कहा बिदअत ज़लाला है, तो मैं यहाँ ये कंफ्यूज हूँ कि आपके आधे लोग ये कहते हैं कि शिरक है, ठीक है, और आप कहते हैं बिदअत ज़लाला है, इसलिए मैं कंफ्यूज हूँ कि बिदअत ज़लाला है या शिरक है। आप मुझे ये बताएं कि शिरक मानते हैं बिदअत ज़लाला, एक बार और बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। देखें सामाईन किराम, ये कंफ्यूज नहीं है, इनकी पूरी जमात ही कंफ्यूज है असल में, क्योंकि जब अहले हदीस का एक अदना सा फर्द इनके सामने आ जाता है ना, तो इनका जहनी तवाजुन भी बिगड़ जाता है मेरे हजरत का। मैं 4 बार और शुरू से कहता आ रहा हूँ कि हम इसको बिदअत ज़लाला मानते, जिस पर मैं कुरान और हदीस को पेश करूंगा इंशाअल्लाह। आप ये कहें कि मैं कुरान और हदीस को नहीं मानता, तब मैं आगे बात करूं हजरत जी। आपसे मैं 4 बार कह चुका हूं, 5वीं बार भी कह रहा हूं, आप फिर भी कह रहे हैं कि शिरक मानते, बिदअत मानते। भाई कितनी बार आपसे कहूं? आपको एक बार में समझ नहीं आता तो आप जाइए किसी डॉक्टर के पास जो कान का इलाज करता है, वहां पे इलाज करा के आप मुझसे बात कर लें। लिहाजा अब मैं तवक्को रखता हूं कि इस बार आप जरूर दलील पेश करेंगे। जी बिस्मिल्लाह। सामीन बेहतर तरीके से जानते हैं कि बार बार मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ। मैं सो नहीं रहा हूँ यहाँ पे, मुझे ख्वाब नहीं आ रहा है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अहले हदीसों से जब मेरी बात होती है तो वो डायरेक्ट शिरक कहते हैं, लेकिन ये पहले भैया ऐसे मिले हैं कि बिदअत ज़लाला कह रहा है इसको, यानी हराम काम कह रहा है। कि जैसे कोई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहे कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरी अल्लाह से सिफारिश करें, हमारे हक में अल्लाह से सिफारिश करें। हमने अपने नबी को अल्लाह के लिए अल्लाह की बारगाह में वसीला बनाया और ये कहा कि नबी आप अल्लाह से हमारे लिए सिफारिश करें, तो ये हराम है क्योंकि ये बिदअत ज़लाला है, तो ये हराम है। लेकिन जो अहले हदीस होते हैं जिनसे मेरी बहुत बात होती है वो तो ये कहते हैं कि ये शिरक होता है। तो इसलिए मैं इनसे बार बार पूछ रहा हूँ क्योंकि जो लोग होते हैं अहले हदीस वो लोगों को और आवाम को धोखा देते हैं, शिरक कहते हैं और ये कह रहा है बिदअत ज़लाला, ठीक है। तो मैं चलो इनसे यही पूछता हूँ कि जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज के वक्त में वसीला बनाए, यानी ये कहे ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से हमारे लिए सिफारिश करें, तो ये अल्लाह की बारगाह में हुजूर को वसीला बनाए, तो ये शिरक है या बिदअत ज़लाला हराम है, बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सामईन देखो, मैं आप इसका तजाद दिखाता हूँ, तजाद इसने कैसे पैदा किया। ये अभी तक मुझसे मांग रहा था दलील के अपने अकाबिरीन से दलील पेश करो, अब कहता है कि मेरी बात होती है तुम्हारे अहले हदीस भाई से, तो जरा मुझे बता दो वो मेरे अकाबिर हैं जिनसे आपकी बात होती है? जब वो मेरा अकाबिर ही नहीं है तो उनके हवाले क्यों पेश कर रहे हो? आपने अकाबिर का मुतालबा किया था, मैंने अपने अकाबिर का भी हवाला दिया। तायद में मैंने कहा भैया हम आपसे 6 मरतबा कह चुके हैं, 7वीं मरतबा 7 टाइम मैं आपसे कह रहा हूँ कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वक्त वसीला बनाने को बिदअत ज़लाला समझते हैं कुरान और हदीस की रूह से। तो मेरे भाइयों, अब तजाद दिखाता हूँ मैं आपको। तजाद की बात कर रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह तजाद मैं दिखाता हूँ आपको। इन्होंने अपनी अकाबिर की किताब से साबित किया कि बिदअत ज़लाला है, ठीक है, लेकिन इनके जो अहले हदीस लोग हैं वो इसको शिरक जाते करते हैं, शिरक है, शिरक है। तो तजाद यहाँ पैदा होता है, ठीक है। मैं इनके अकाबिरों की बात नहीं कर रहा कि तुम्हारे अकाबिर ये कहे, अब अकाबिरों की बात तो की नहीं मैंने। अकाबिरों की बात तो मैंने यहाँ की कि तुम्हारे अकाबिर इसके बारे में क्या कहते हैं। जब इन्होंने बता दिया कि बिदअत ज़लाला ज़ुबैर अली ज़ई कहते हैं, तब मैंने इनसे ये कहा, बल्कि आपको समझाने की कोशिश की है सामीन कि अहले हदीस जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि शिरक है वसीला लेना, कि कोई अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहे कि आप मेरी अल्लाह से सिफारिश कीजिए, ये वसीला लिया किसी ने, तो ये शिरक है। लेकिन इनके अकाबिर कह रहे हैं बिदअत ज़लाला है, तो यहाँ हुआ तजाद, ठीक है। तो मैं मुख्तसर अल्फाजों में इनसे एक बार और पूछ रहा हूँ कि ये बताओ कि किसी शख्स ने अगर ये कहा कि ए नबी हमारी अल्लाह की बारगाह में सिफारिश कीजिए, नबी को वसीला बनाया, अगर आपका इसका सीधा सीधा जवाब देते हैं तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको फिर दलील पेश करता हूँ, ठीक है। अब इसके बारे में मुझे बताएं कि इसको आप हराम कहते हैं कि शिरक कहते हैं? कि अगर किसी ने ये कहा है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी सिफारिश अल्लाह के हुजूर कीजिए, हमारी बख्शिश करवाइए, बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
वस्सलाम वस्सलात अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद। इस रिकॉर्डिंग को ज़रूर आप मेरे अमान भाई डालिएगा ज़रूर आप, ताकि आवाम को पता चले कि हमारे कितने बड़े मुनाजिर आए हैं हज़रत जी। अल्लाह की कसम, मैंने मुनाजिर इनके बड़े बड़े मुफ्तियान से किए हैं, फारूक रजवी से लेकर जोखमपुरी साहब तक। मैंने कभी ऐसा मुनाजिर नहीं देखा जो ये पेश कर रहे हैं। 7 मरतबा इनको मैं बता चुका। अब कह रहे हैं मैंने तो अकाबिर की बात नहीं की थी। जब से शुरू से कहते आ रहे हैं कि आपके अकाबिर का माना जाएगा। अब मैंने अकाबिर का पेश किया तो ये कह रहे नहीं, आपके अकाबिर को भाई बोला ही नहीं, मैं तो आपके उलमा को बोला था। अरे भाई कहाँ से आप आए हैं? वाक़ियतन आप जो हैं कोई ड्रिंक व्रिंक करते हैं तो मुझे बता दें, अगर आपने कोई नशा कर रहा है तो हजरत बता दें साहब कि मुझे नहीं पता। मैं 7 मरतबा कह चुका हूँ, कितनी मरतबा भी आप दोहराएंगे ना, मेरा फतवा नहीं बदलेगा। कुरान हदीस की रूह से मैं पेश कर रहा हूँ, और एक कुरान और हदीस की रूह से फतवा पेश करने वाले का फतवा नहीं बदल। आपसे मैं 12 कह चुका हूँ कि रसूलुल्लाह की दुआओं में अपना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला लेना अपनी दुआओं में, या सिफारिश कराने के हम सिफारिश करते हैं। हमारे नज़दीक आज के दौर में ये बिदअत ज़लाला है। इस पर इंशाअल्लाह हम कुरान और अहदीस सहीहा व मुतवातिरा से, खबर वाहिद से नहीं मुतवातिरा से आपको पेश करेंगे कि ये अमल जो है ये बिदअत ज़लाला है। अब आपको मैं जवाब दे दिया 8वीं बार। अब लिहाजा आपने कहा था कि इसके बाद मैं दलाइल पेश करूंगा, तो हजरत जी आप दलाइल पेश करें कुरान और हदीस से, ठीक है? तो सामीन, जैसा कि आपने बिल्कुल साफ साफ सुना, बहुत क्लियर अल्फाजों में सुना कि जो शख्स ये कहे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आज के वक्त में ये कहना कि ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी सिफारिश अल्लाह की बारगाह में कीजिए कि हमारी खताएं माफ हो या हमारा फला काम बन जाए, तो ये शिर्क नहीं हराम है, ठीक है। इनके नजदीक आज तक जो शिर्क था वो अब हराम हो चुका है, ठीक है। यहाँ ये क्लियर हो गया बकौल इनके। और दूसरी बात, मैं इनके अकाबिरों के फतवे पूछ रहा था। इनके अकाबिरों का जब इन्होंने फतवा बता दिया कि बिदअत जलाला है, फिर मैंने क्या कहा कि तुम्हारी कौम जो अहले हदीस है वो तो शिर्क गाती करती है। चलिए यहाँ तजाद दिखाया मैंने, ठीक है। दूसरा ये कह रहे हैं कि हमने इतने इतने बड़े लोगों से मुनाजरे किए और जो है बहुत बड़े बड़े इनके मुफ्तियों से मुनाजरे किए, तो जहाँ तक मेरा इल्म है, मुझे इल्म है कि ये हमारे जो छोटे छोटे भाई हैं मुनाजर के छोटे छोटे, उनसे भागते हुए नजर आए, ठीक है। अब आगे मैं बात करता हूँ कि इन्होंने हराम कहा है, वसीला लेने को हराम कहा है, बिदअत जलाला हराम कहा है, ठीक है। अब मैं आपको वसीले की एक दलील देता हूँ। दो भाई बस वसीले के ऊपर मैं तुम्हें दलील देता हूँ, ठीक है। हाँ बिल्कुल सुन दीजिए। देना सुन देना सुन देना। बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह एक नहीं, 2 दलीलें देता हूँ मैं। एक 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 करके बात कर रही। अरे भाई एक मिनट, आप मेरा दूसरे वाले नंबर पे कॉल करें, क्योंकि इस नंबर पे आपने किया है तो उस पर नेट नहीं चल रहा है, ठीक है। अच्छा नेट से चलाएंगे आप, दलील नहीं है आपके पास अभी? नहीं 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 नहीं, दलील है, दलील मैं आपको नेट से निकाल के देना है ना, मुझे मेरे ऐप में है, अच्छा ठीक है। नेट से आप चलाएंगे आप दलील? मैं आपके पास फोन कर रहा हूँ, ठीक है, अभी बिल्कुल हाँ 1 हाँ हाँ मिनट में, करो, ठीक है। दूसरे नंबर से करो।